آج کل کچھ جگہوں پر اور کچھ مسجدوں میں تراویح کا، قرآن پاک کا خوب مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تراویح کے ساتھ بھی اور قرآن پاک کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو شروع میں بتایا اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ پرانا ویڈیو ہے، لیکن لگ بھگ ایسے ہی بلیٹ ٹرین، تراویح والی بلیٹ ٹرین کچھ جگہوں پر اتنی ہی اسپیڈ سے آج بھی دوڑ رہی ہے۔ پورا ویڈیو دیکھنا، ذرا سا بھی اسکپ مت کرنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری مسجدیں اور بہت سارے حفاظ کرام آج بھی ایسے ہیں جو قرآن پاک کا، تراویح کا حق ادا کر رہے ہیں، سکون اور اطمینان سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، تجوید و مخرج کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل آج کے دور میں جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو 2-3 دن پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر ایک میسج یا پھر ایک طرح کے پوسٹر وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں فلاں حافظ صاحب تراویح میں 2 پارے سنائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ 3 پارے سنائیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کے بھی میسج دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب روزانہ 10 پارے تراویح سنائیں گے، اور نیچے وجہ یہ لکھی ہوتی ہے کہ جو حضرات اپنے کاروبار کی وجہ سے مکمل قرآن پاک نہیں سن پاتے، ان کے لیے رات 12 بجے عشاء ہوگی اور 12:30 بجے تراویح میں 10 پارے سنائے جائیں گے، تاکہ وہ 3 دن میں مکمل قرآن پاک سن لے یا 10 دن میں مکمل قرآن پاک سن لے، پھر باقی کی تراویح ان کی معاف، وہ اپنے کاروبار میں لگ سکتے ہیں۔ اور ایسی جگہ پر کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم دیکھا جاتا ہے، جگہ ناکافی ہو جاتی ہے، پوری مسجد بھری ہونے کے باوجود بھی باہر نمازیوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، لوگ آس پاس کے مکانوں کے چھت پر بھی جائے نماز بچھا کر تراویح میں قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی اسپیڈ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حافظ پہ بھی لعنتیں برستی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی اسی طرح۔ اب آپ ہی ایمانداری سے بتائیے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیے کہ جہاں 3 پارے، 6 پارے اور 10 پاروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے، کیا سچ میں قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کا حق ادا ہو رہا ہے؟ بہت معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی نہیں سنائی دیتا۔ اتنی سپر فاسٹ اسپیڈ سے قرآن پاک سنا کر آخر یہ حفاظ کرام کرنا کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہ تراویح ارینج کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہی طریقہ قرآن پاک کو سننے اور سنانے کا ہے کہ جہاں الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی، مد، سکتہ اور تمام قواعد کیا مکمل ایسی اسپیڈ سے ادا ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ آج ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے کچھ حفاظ کرام کو اور کچھ مسجد کے ذمہ داروں کو اور کچھ لوگوں کو وہ ضرور ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں ان سب سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ارے حفاظ کرام کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق پڑھنے اور سننے کا عادی بنائے، لوگوں میں قرآن پاک کو سننے، سکون سے سننے اور پڑھنے کا شوق پیدا کرے،
रूह को सुकून मिले, ऐसा कुछ काम करे। खुदा की कसम, अल्लाह के कलाम में वो तासीर है कि अगर किसी के कुछ समझ में ना भी आए तो वो कुछ ऐसा असर कर जाता है कि दिल की दुनिया ही बदल जाती है। शर्त यह है कि पढ़ने वाला पूरे हक के साथ कुरान करीम की तिलावत करे। आप खुद सोचिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि नमाज के बाहर एक पारा पढ़ने को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और तरावी में 1 घंटे में 20 बार सूरे फातिहा, 20 बार अत्तहियात, 40 बार दरूद इब्राहिमी और 20 बार दुआए मासूरा, 20 रुकू, 40 सजदे और हर तरावी में हर 4 रकात के बाद दुआ पढ़ते हैं तो आप बताइए कितना वक्त लगेगा। अगर 8 बजे नमाज शुरू होगी तो 12 तो बजेंगे ही। ये तो एक पारे की बात मैंने कही। आप सोचिए और गौर फिक्र कीजिए कि 3 पारे, 6 पारे और 10 पारे वालों का क्या होता होगा। रात रात भर जागकर आधी नींद और आधी गुनूदगी में कुरान पाक को सुनाया जा रहा है, वो भी इतनी स्पीड और तेज रफ्तारी के साथ के पढ़ने वाले को भी खुद पता नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है। और अक्सर ये देखा गया है कि पिछली सफ में जो लोग होते हैं वो पानी पीते पीते, चाय का लुत्फ लेते लेते कुरान पाक सुनते हैं और जैसे ही हाफिज साहब रुकू में जाते हैं वो हजरत दौड़ते हुए आते हैं और रुकू में आकर शामिल हो जाते हैं। और अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 10 पारे, 6 पारे और 3 पारे सुनने वाले आखिर करना क्या चाह रहे हैं। क्या वो ये समझ रहे हैं कि 10 दिन में कुरान पाक सुन लेने से वो कुरान करीम का हक अदा कर रहे हैं इतनी स्पीड से, या फिर कई अहादीस वगैरह में उन्होंने कहीं सुन रखा है कि रमजान में एक बार कुरान सुन लो फिर सारे रमजान उनको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बल्कि अक्सर उलमाए किराम को, अल्लाह वालों को ये डर लग रहा है कि ये इबादत के साथ एक बिदत हसना की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है कि लोग तरावी में 6 पारे, 3 पारे और 10 पारे सुनाने का जो एहतमाम कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में लोगों को मस्जिद से पूरे महीने के लिए बांध कर रखा जाता, एक एक नेकी के फजाइल पर उनको उभारा जाता, लोगों को बार बार मस्जिदों में आने का आदी बनाया जाता ताकि वो रमजान खत्म होने के बाद भी मुस्तकिल मस्जिद में आने के लिए तड़प रहे हो। लेकिन यहां तो उसका उलट ही हो रहा है। 3 पारे, 6 पारे, 10 पारे सुनाकर जल्दी आवाम को मस्जिदों से दूर किया जा रहा है। मैं बड़े अदब, एहतराम और माफी के साथ कहना चाहता हूं कि तोहफे, तहाइफ, नजराने और चंदों के लिए दूसरे महीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बराए करम इस बाबरकत महीने को धंधे का महीना न बनाए। इसे नेकियों की फसले बहार का ही महीना रहने दे। खूब से खूब और नेकियों को हासिल करने का महीना बनाने की फिक्र करें। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह उसके रसूल ने जो इसकी तकसीम बताई है कि पहला अशरा रहमत का है और दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का है, उस पर तवज्जो दी जाए। इसको तो एक किनारे रख दिया जाता है और सारा जोर इस पर दिया जाता है कि रमजान के रातों में जैसे भी हो सके पूरा कुरान किसी हाफिज से पढ़वा लिया जाए और एक बोझ है सर से जो उतार कर फेंक दिया जाए। चाहे 3 पारा सुनकर हो, 6 पारा सुनकर हो या 10 पारा सुनकर हो या शबीने के नाम पर एक ही रात में पूरा कुरान पढ़ लिया जाए और जैसे तैसे ये बोझ उतार कर फेंक दिया जाए। मैं मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों से यह दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि जो 3 रात, 5 रात या 10 रात की तरावी का एहतमाम करते हैं वो खुदा के लिए ऐसा न करें, और वो अइम्मा, वो हुफ्फाज हजरात जो इस तरह की इमामत करते हैं और इस तरह का कुरान सुनाते हैं वो इमामत न करें। और जो लोग इस तरह की तरावी में शरीक होते हैं वो 1.25 पारा, 1 पारा सुकून से पढ़ने और सुनने का रूहानी मजा ले और खुदा के लिए अल्लाह की किताब के साथ और नमाज के साथ, तरावी के साथ खिलवाड़ न करें, वरना अल्लाह की पकड़ बड़ी जबरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों को आप पॉजिटिव और मुस्बत अंदाज से लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आगे शेयर जरूर करें।
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में नाजिल हुआ और सहाबा-ए-किराम इसको पढ़ते थे, समझते थे और फिर उस पर अमल करते थे। यहाँ तक बताया जाता है कि सहाबा-ए-किराम ने सूरे बकरा को 7 साल में पूरी किया। मतलब 7 साल में इस तरह पूरा किया कि अमल के साथ साथ उसको पढ़ते थे, सारी चीज़ों पे जो भी उसमें अहकाम दिए गए थे उन पे अमल करते थे। और आज हम मुसलमानों का ये हाल है कि हम इसको बोझ समझते हैं, पूरे साल तो कुरान उठा के नहीं देखते हैं और जब रमज़ान आता है तो उस पे भी सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके कुरान पढ़ के तरावी के में और फिर बाद में फुर्सत पा जाएं। तो इस बारे में मौलाना साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया है और बहुत ही दर्दमंदाना अपील की गई है इस चीज़ के बारे में कि आप इस चीज़ को पहुंचाइए, आगे शेयर कीजिए ताकि कुरान की बेअदबी जो हम मुसलमान कर रहे हैं हम इस गुनाह से बच सकें और लोगों को बता सकें कि कुरान अमल के लिए आया है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक कुरान के एक हर्फ को पढ़ने में 10 नेकियां मिलती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी कि इसको पढ़ने में अगर जिसने भी अलिफ लाम मीम कहा तो समझ लो उसको 30 नेकियां मिली। तो कुरान को जो है हम लोगों को चाहिए कि उसको समझ के पढ़ें और उसको जो है ना सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ें। कुरान के एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक हर्फ का हक़ अदा करना ज़रूरी है। अगर हमने उसको जिस जगह से मखरज जहाँ से निकालने को बताया गया उसको गलत जगह से निकाल दिया तो हक़ नहीं अदा होगा। लेकिन जिस तरह तरावी में इतनी तेज़ी से पढ़ा जाता है उसमें तो कुरान के अल्फ़ाबेट सही से मखरज जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा कोई पढ़ रहा है इतनी स्पीड में, कहाँ पे उसको खींचना है, कहाँ पे उसको रोकना है आवाज़ को, कहाँ पे जो तजवीद के जो कायदे हैं वो सब अप्लाई हो ही नहीं सकते। और अगर अप्लाई होंगे तो इतनी जल्दी पढ़ा ही नहीं जा सकता। यानी कि कुरान को सही तरीके से पढ़ने के लिए लोगों को बताइए और ख़ुद भी हम सबको चाहिए कि हम सब भी जब कुरान की तिलावत करें घर में तो उसको ठहर ठहर के पढ़ें, समझ के पढ़ें, जल्दबाजी में नहीं पढ़ें। अल्लाह पाक ने कुरान करीम सूरह आल इमरान में की आयत नंबर 91 में फ़रमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, उस तरह से अल्लाह की कदर नहीं की गई जिस तरह से करना चाहिए था। और ये बात देखने में भी आती है कि हम लोग जब रमज़ान आता है तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग को अल्लाह को राज़ी करना है, तो हम लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी कुरान पढ़ के बोझ उतार दें, मतलब लोगों को बता सकें कि हमने इतना कुरान पढ़ा है, तरावी पढ़ के जल्दी से फुर्सत पा जाए। और इतने सारे जो पारे पढ़े जा रहे हैं तरावी में, ये सब चीज़ें जो हैं अगर गहराई से सोचा जाए तो हम लोग कुरान का हक़ नहीं अदा कर रहे हैं। कुरान का एक एक हर्फ का हक़ अदा करना ज़रूरी है। जहाँ से जो मखरज निकालना है वहीं से निकलना चाहिए। और जो जिस तरह से आज के दौर में तरावी पढ़ी जा रही है इतनी स्पीड से, तो वो मखरज वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। उस तरह से जहाँ पे बताया गया है इफ़ा करना है, कहाँ पे गुन्ना करना है, कहाँ पे जो है इक़लाब करना है, कहाँ पे जो है उसको ना हुरूफ़ मुस्तालिया को अदा करना है, किस तरीके से कहाँ पे 5 अलीफ़ के बराबर खींचना है, कहीं पे 3 अलीफ़ के बराबर खींचना है। ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जिस तरह से सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह पाक ने फरमाया रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। तो अल्लाह पाक तो फरमा रहे हैं कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो और हम लोग के हाई स्पीड में पढ़ रहे हैं। और फिर अल्लाह पाक सोचिए कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है जिस तरह कोई गाने वाली का कोई गाना सुनता है उस तरह अल्लाह ताला कान लगा के सुनते हैं जो कोई कुरान पढ़ता है। और हम लोग इतनी नाकदरी से कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह पाक सुनेंगे तो हम लोग को शर्म आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कुरान का हक़ हमें अदा करना है। अल्लाह की भी कदर करें, अल्लाह के कलाम की भी कदर करें।